Welcome student in this YouTube video. This YouTube video having the part 3 of the chapter sectors of the Indian economy. And I request you stay at home, wash your hands regularly, stay safe from COVID-19 because COVID-19 needs precautions and that is only a safety for all of us. In previous two part I covered some part of the sectors of Indian economy. In this part we will go further to know more about sectors of Indian economy. So let's start a chapter. I already told you that 60% of the total population of India lies in the age group of 5 to 29 years. So only out of that 51% attend school. Rest of them, what they are doing, some of them are staying at home, many of them may be working as a child laborers. If these children are not attending school, we will require more buildings, more teachers and other staffs. अगर ये बच्चे जहाँ स्कूल आएंगे तो हमें जहाँ टीचर्स चाहिए, जहाँ स्टाफ चाहिए. अ स्टडी कंडक्टेड बाय द एस्टवाइड प्लानिंग कमीशन नाउ नोन एज नीति आयोग. पहले प्लानिंग कमीशन नाम हुआ करता था हमारे योजना आयोग का, अभी उसको नीति आयोग बना दिया गया है. एस्टिमेट्स दैट नियरली 20 लाख जॉब कैन बी क्रिएटेड इन द एजुकेशन सेक्टर अलोन. तो एजुकेशन सेक्टर में 20 लाख नौकरियां जो हैं वो क्या की जा सकती, क्रिएट की जा सकती हैं. सिमिलरली इफ़ वी आर टू इम्प्रूव द हेल्थ सिचुएशन वी नीड मैनी मोर डॉक्टर्स, नर्सेज, हेल्थ वर्कर्स एक्सेट्रा to work in rural areas. These are some way by which jobs would be created and we would also be able to address the important aspects of development talked in the chapter 1. So we are finding out the answer of how employment can generated in different field, education, health, I already told you. Then every state or region have the potentiality to increase the income and employment for the people of that area. It could be tourism और रीजनल क्राफ्ट इंडस्ट्री और न्यू सर्विसेज लाइक आईटी. तो इन तरीक़ों से भी जो है जॉब क्रिएशन की जा सकती है. सम ऑफ दीज वुड रिक्वायर प्रॉपर प्लानिंग and support from the government. For example, the same study by the planning commission says that if tourism as a sector is, the planning commission कहता है कि tourism को अगर हम एक सेक्टर के रूप में, tourism can provide the employment opportunity to 35 lakh people. So this is also a great potentiality of tourism sector. We must realize that some of the suggestions discussed above would take a long time to implement. तो काफ़ी लंबा समय लगेगा इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए. अगर हम टूरिज़म को भी डेवलप करना चाहते हैं तो हमें टूरिस्ट स्पॉट जो हैं वो डेवलप करने होंगे. सो शॉर्ट टर्म वी नीड सम क्विक मेजर्स. तो छोटे समय के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, है ना, हमें जो है जो क्विक मेजर्स जो है वो उसकी आवश्यकता होती है. रिकोगनाइजिंग दिस द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेड ए लॉ इम्प्लीमेंटिंग द राइट टू वर्क. तो राइट टू वर्क जो है उसको इम्प्लीमेंट करते हुए सरकार ने क्या किया, 625 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया में राइट टू वर्क जो है प्रोवाइड किया गया, इम्प्लीमेंट किया गया. इस कानून को, अधिकार को दिया गया लोगों को, जिसको कहा गया मनरेगा, महात्मा गांधी नरेगा जिसे हम कह सकते हैं. 2005 में ये इम्प्लीमेंट हुआ था. महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005. अंडर मनरेगा 2005 अब इसमें क्या हुआ, एक क्विक रिलीफ दिया गया लोगों को, क्विक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन किया गया. ऑल दोज हु आर एबल टू एंड आर इन need of work in rural areas are guaranteed 100 days of employment in a year by government. तो जिनको भी काम की आवश्यकता थी गाँव के इलाकों में, उनको 100 डेज़ की एम्प्लॉयमेंट जो है सरकार ने देने का वादा किया. If the government fails in its duty to provide employment, it will give unemployment allowances to the people. और इसके अलावा अगर वो रोज़गार नहीं दे पाती है सरकार तो उसको unemployment allowances भी देने होते हैं. The types of work that would in future help to increase the production from land will be given preference under the act. तो जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती हो उसी प्रकार के काम को जो है इसमें प्रमोट किया जाता है. जैसे तालाब बनाए जाएंगे इरिगेशन के लिए एक्सेट्रा. लेट्स वर्क दीज आउट. व्हाई डू यू थिंक मनरेगा 2005 इज़ रेफर टू एज राइट टू वर्क. तो राइट टू वर्क जो है क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें 100 डेज़ की एम्प्लॉयमेंट दी जाएगी गवर्नमेंट के द्वारा. अगर नहीं दी जाती है सरकार के द्वारा तो गवर्नमेंट जो है उनको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस जो है वो प्रोवाइड करेगी. तो एक प्रकार की ये गारंटी है, एक प्रकार का ऐसा अधिकार है जो कि राइट टू वर्क के नाम से जाना जाता है. इमेजिन दैट यू आर इन द विलेज हेड, आर द विलेज हेड
In that capacity, suggest some activities that you think should be taken up under this act that would also increase the income of people. Discuss, अगर गांव के प्रधान हों आप तो क्या करना चाहेंगे जिससे लोगों की इनकम भी बढ़े। तो एग्रीकल्चर में हम इरिगेशन पे फोकस कर सकते हैं, हम वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। तो ये सब स्टेप्स जो है लिए जा सकते हैं। आप भी अपनी तरफ से कुछ कुछ जो है सजेस्ट कर सकते हैं। हाउ अबाउट इनकम एंड तो थर्ड पार्ट यू कैन डू बाय योर ओन। फोर्थ में देखिए, इन व्हाट वेज कैन एम्प्लॉयमेंट बी इंक्रीज्ड इन अर्बन एरियाज़। तो अर्बन एरियाज़ में एम्प्लॉयमेंट कैसे इंक्रीज़ हो सकती है, आप क्या कुछ सजेस्ट कर सकते हैं। जैसे कैजुअल वर्कर्स हैं और डेली वेजेस हैं, उनके लिए एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो इनको भी इसके लिए आप कुछ सजेशन जो हम नोटबुक में लिखेंगे, हो सकता है आपके सजेशंस को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्नॉलेज कर ले। डिवीजन ऑफ सेक्टर्स एज ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स। तो देखिए हमने 3 सेक्टर्स किए अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कि वो प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है। नाउ हम एक बार फिर से एक और डिवीज़न कर रहे हैं सेक्टर्स की कि वर्किंग कंडीशन को लेके ऑर्गेनाइज सेक्टर है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। वर्किंग कंडीशंस वेरी इंपॉर्टेंट टू कैटेगराइज अनऑर्गेनाइज और organized sector. Let us examine another way of classifying activities in the economy. तो हम एक और तरीके से क्लासीफाई करेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को। दिस लुक एट द वे पीपल आर एम्प्लॉयड। हम इसमें देखते हैं कि लोग जो हैं कैसे एम्प्लॉयड हैं, वर्किंग कंडीशंस कैसी हैं उनकी। आर देयर एनी रूल्स एंड रेगुलेशन दैट आर फॉलोड एज रिगार्ड देयर एम्प्लॉयमेंट। तो क्या जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए उनको फॉलो किया जाता है कि नहीं किया जाता। उसी की बेसिस पे ये 2 सेक्टर्स बनाए गए हैं या क्लासीफाई किए गए हैं। देखिए यहाँ पे कांता एग्जाम्पल है। कांता वर्क्स करती है, किसी ऑफिस में काम करती है। शी अटेंड हर ऑफिस फ्रॉम 9:30 AM टू 5:30 PM। तो उसका समय जो है ये है। शी गेट्स हर सैलरी रेगुलरली एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। उसे सैलरी मिलती है हर महीने के एंड में। इन एडिशन टू द सैलरी शी ऑल्सो गेट प्रोविडेंट फंड, PF जिसको बोलते हैं गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग। और उसके बाद मेडिकल केयर अलाउंसेस भी उसको मिलते हैं कांता को। एंड कांता डज़ नॉट गो टू ऑफिस ऑन संडे। संडे को कांता ऑफिस भी नहीं जाती है। दिस इज़ ए पेड हॉलीडे और संडे को उसे पेड हॉलीडे मिलती है। व्हेन शी जॉइंड वर्क शी वाज गिवन एन अपॉइंटमेंट लेटर। जब उसने नौकरी शुरुआत की थी तब भी उसे एक अपॉइंटमेंट लेटर दिया गया था जिसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी गई थी कि काम जो है किस तरीके से किया जाएगा, उसके क्या अधिकार हैं। दैन द एग्ज़ाम्पल ऑफ कमल। दोनों एग्जाम्पल से हमने सीखना है कि ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर कौन से होते हैं। तो कमल जो है कांताज नेबर में रहता है। नेबर है उसका, ही इज़ ए डेली वेज लेबरर इन नियर बाई ग्रोसरी शॉप। ग्रोसरी शॉप है वो एक डेली वेज, मतलब उसको डेली की डेली जो है उसकी पेमेंट जो है उसको मिल जाती है। ही गोज़ टू शॉप एट 7:30 in the morning and works till 8 PM। 7:30 जाता है, 8 बजे तक काम करता है। तकरीबन 11.5 घंटे वो वहाँ पे काम करता है। उससे भी ज़्यादा समय तक काम करता है। तकरीबन कितने घंटे हो गए ये, 12.5 घंटे वो काम करता है। ही गेट्स नो अदर अलाउंसेस अपार्ट फ्रॉम हिज वेजेस। उसको कुछ भी नहीं मिलता, बस उसको पैसे मिलते हैं उसकी डेली जो वेजेस मजदूरी होती है उसके हिसाब से। उसको कोई पेड हॉलीडे नहीं होता। जब वो काम करेगा तो पैसे मिलेंगे। और उसको कोई फॉर्मल लेटर भी नहीं दिया गया है जिसमें टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है लिखी गई हों कि वो हमारी शॉप पे काम करता है। ही कैन बी आस्क्ड टू लीव एनी टाइम बाय हिज एम्प्लॉयर। तो उसका जो मालिक है उसे कभी भी कह सकता है कि भाई कल से काम पे मत आना। तो आप देख सकते हैं कमल जो है उसकी वर्किंग कंडीशन कैसी हैं। एंड कांताज वर्किंग कंडीशन किस प्रकार की हैं, उसको टेबल मिला है। वो फाइल वर्क करती है बेसिकली। तो दोनों में क्या डिफरेंस आपको लगता है। दोनों में जो डिफरेंस है वही ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर को इंडिकेट करता है। कांता एक ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करती है जहाँ पे सारे रूल्स को फॉलो किया जाता है। वर्किंग कंडीशंस जो है कांता के लिए बहुत अच्छी हैं। पेड हॉलीडे है, PF की फैसिलिटी है। लेकिन दूसरी तरफ कमल जो उसके पड़ोस में रहता है वो किसी दुकान पे काम करता है और वहाँ की वर्किंग कंडीशन जो है बिल्कुल उसके फेवर में नहीं है। उसको कभी भी जॉब से निकाला जा सकता है। तो ये दोनों पिक्चर को देख के हम पता लगा सकते हैं। लेट्स डिस्कस मोर अबाउट दिस ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो आपको दोनों में डिफरेंस जो है पता करना है उनकी वर्किंग कंडीशंस को लेके। कांता वर्क्स इन, चलिए डिस्कस करते हैं इसके बारे में। कांता वर्क्स इन ए ऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करती है ये, आपने याद रखना। इसका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफ्रेंशिएशन आता है कई बार ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर कवर्स दोज एंटरप्राइजेज और प्लेसेस ऑफ वर्क वेयर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर रेगुलर
एंड देयरफॉर पीपल हैव एश्योर्ड वर्क। तो वहाँ पे टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है वो रेगुलर होती हैं, एश्योर्ड वर्क होता है, दे आर रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट, और वो कंपनियाँ, वो जो प्लेसेस होते हैं रजिस्टर्ड होते हैं गवर्नमेंट के पास, और वो सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन जो गवर्नमेंट ने बनाए हैं उनको फॉलो करते हैं, which are given in various laws such as फैक्ट्री एक्ट, फैक्ट्रीज एक्ट है बना हुआ है, उसके अकॉर्डिंग मिनिमम वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट, शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट एक्सेट्रा। इट इज़ कॉल्ड ऑर्गेनाइज्ड बिकॉज इट हैज़ सम फॉर्मल प्रोसेसेस एंड प्रोसीजर्स। तो वहाँ पे फॉर्मल प्रोसीजर्स हैं जो कि फॉलो करने पड़ते हैं। अलग अलग कानून बनाए गए हैं सरकार के द्वारा वर्कर्स की सेफ्टी, वर्कर्स के बेनिफिट के लिए, वो सारे के सारे ऑर्गेनाइज सेक्टर में फॉलो किए जाते हैं। सम ऑफ द फैक्ट्रीज मे नॉट बी रजिस्टर्ड, बट some of these people may not be employed by anyone but may work on their own, but they too have to register themselves with the government and follow the rules and regulations. So workers in the organized sector enjoy security of employment. तो सबसे पहले उनको जॉब सिक्योरिटी का फ़ायदा होता है, उनकी जॉब सिक्योर होती है। दे आर एक्सपेक्टेड टू वर्क ओनली ए फिक्स नंबर ऑफ आवर्स, और वर्किंग आवर्स फिक्स होते हैं, 8 घंटे मैक्सिमम होता है। इफ़ दे वर्क मोर देन दे मस्ट बी पेड ओवर टाइम बाय द एम्प्लॉयर। अगर वो ज़्यादा देर तक काम करते हैं तो उनको ओवर टाइम जो है दिया जाता है। दे ऑल्सो गेट सेवरल अदर बेनिफिट फ्रॉम द एम्प्लॉयर। उसके अलावा उसको कई और बेनिफिट जो है एम्प्लॉयर फैक्ट्री मालिक से मिलते हैं। वो कौन से बेनिफिट है, जैसे कि पेड लीव मिलेगी उनको संडे की, पेमेंट ड्यूरिंग हॉलीडेज़ उनको मिलती है, प्रोविडेंट फंड पीएफ मिलता है, ग्रेजुएटी मिलती है। दे आर सपोज टू गेट मेडिकल बेनिफिट अंडर द लॉज, एंड द फैक्ट्री मैनेजर हैज़ टू इंश्योर फैसिलिटीज़ लाइक ड्रिंकिंग वाटर एंड then a safe working environment. When they retire, these workers get pension as well. तो ये सब जो है ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने के फ़ायदे हैं। और मुझे लगता है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर को जानने के बाद कोई बच्चा जो है, जहाँ जो इस वीडियो को सुन रहा है, वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर की ओर नहीं जाएगा। वो क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि वहाँ पे कुछ समस्याएं हैं, वो समस्या हम पढ़ते हैं। इन कॉन्ट्रास्ट टू कमल वर्क्स इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो कमल जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करता है। द अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है? इज़ characterized by small and scattered units which are largely outside the control of the government. तो ये स्मॉल यूनिट्स होती हैं जो कि गवर्नमेंट कंट्रोल से बाहर होती हैं। देयर आर रूल्स एंड रेगुलेशंस बट दीज आर नॉट फॉलोड। रूल्स एंड रेगुलेशन तो हैं लेकिन फॉलो नहीं किए जाते हैं। जॉब्स हियर आर लो पेड एंड ऑफन नॉट रेगुलर। तो कम सैलरी मिलती है, रेगुलर भी जॉब नहीं होती है। देयर इज़ नो प्रोविजन ऑफ ओवर टाइम, पेड लीव, हॉलीडे लीव ड्यू टू सिकनेस एक्सेट्रा। एम्प्लॉयमेंट इज़ नॉट सिक्योर। तो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट भी सिक्योर नहीं हो, जैसे कमल के केस में था। पीपल कैन बी आस्क्ड टू लीव विदाउट एनी रीज़न। When there is less work, such as during some seasons, some people may be asked to leave। मतलब जब काम नहीं होता है तो उनको काम छोड़ने के लिए भी कहा जा सकता है या कहा जाता भी है। तो ये सब जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर के साथ समस्याएं हैं, डिफ़िकल्टीज़ हैं। वर्किंग कंडीशंस जो हैं बिल्कुल भी वर्कर्स के फेवर में नहीं होती हैं। अ लॉट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द विम्स ऑफ द एम्प्लॉयर। मतलब एम्प्लॉय की मर्जी तक ही वहाँ तक रहते हैं। दिस सेक्टर इंक्लूड्स ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल हु आर एम्प्लॉयड ऑन देयर ओन डूइंग स्मॉल जॉब सच एज सेलिंग ऑन द स्ट्रीट और डूइंग रिपेयर वर्क। तो छोटे छोटे जो दुकानदार हैं, रिपेयर वर्क करते हैं, वो सब इसमें शामिल हैं। सिमिलरली फार्मर्स वर्क्स ऑन देयर ओन एंड हायर लेबरर्स एज एंड व्हेन दे रिक्वायर। तो वर्कर्स जो फार्म में काम करते हैं वो भी इसी का एक पार्ट है। लेट्स वर्क दीज आउट। देखिए मैक्सिमम लेट्स वर्क दीज आउट वो क्वेश्चंस हैं जो आपने करने हैं, और इन्हीं क्वेश्चन से जो है आपसे क्वेश्चन पूछे भी जा सकते हैं सीबीएसई के द्वारा। तो इसीलिए इनको आप प्रिपेयर करिए। सारे तो नहीं, मैं कुछ एक के बारे में आपको बता देता हूँ, जैसे कि लुक एट द फॉलोइंग एग्जांपल विच ऑफ दीज आर अनऑर्गेनाइज सेक्टर एक्टिविटी। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर एक्टिविटी कौन सी हैं? A teacher taking classes in a school, a head load worker carrying a bag of cement on his back in a market. तो इनमें a farmer irrigating her field, a doctor in a hospital treating a patient, a daily wage laborer working under a contract, a factory worker going to work in a big factory, a handloom weaver working in her house. तो टीचर जो है एक प्रकार से वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहा है। देन फार्मर जो है इरिगेटिंग हर फील्ड, ये ऑर्गेनाइज सेक्टर है। डॉक्टर का जो यहाँ पे काम है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर का है। डेली वेज लेबरर कॉन्ट्रैक्टर के अंडर काम कर रहा है, तो वो भी क्या है, एक प्रकार से अनऑर्गेनाइज सेक्टर है।
तो इसी प्रकार से सेकेंड और थर्ड यहाँ पे लेट्स वर्क दीज आउट हैं, ये एक्टिविटीज़ भी हैं जो आपने अपनी नोटबुक में कंप्लीट करनी है। और मुझे उम्मीद है आप इजीली ये सारी एक्टिविटीज़ कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि चैप्टर में ही इस चीज़ के आंसर्स जो है दिए गए होते हैं। So be self-dependent in these matters. Again, then a table below shows the estimated number of workers in India in the organized and unorganized sector. Read the table carefully, fill in the missing data and answer the question that follows. तो इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो पीसा के अंडर आ सकते हैं। तो इन क्वेश्चंस को जो करिए, CCT बेस्ड क्वेश्चन है ये, और मुझे उम्मीद है कि आप इजीली इनका जवाब कर सकते हैं। सो लेट्स मूव द नेक्स्ट on next page. So you have this assignment from my side. Let's work these out जो दिए हुए हैं, इनको नोटबुक में प्रॉपर वे में करिए। थैंक यू।